to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn Standard 4, Subject English, and the topic is A Garden of Words, page number 81 from your English textbook, My English Book 4. And I'm your VTC teacher, Tabassum Riyaz Khan. Then let us start with the topic today, A Garden of Words. Here is the student table of a garden of words. Now what we will do first, we will just read the table of garden of words. इसके words हम read करेंगे. Okay. First one is after. After it means बाद में. As. As. Believe. Believe. Believe यानी भरोसा करना. Bright. 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 It means चमकदार. Broke. Broke. Broke यानी टूट गया. Bucket. Bucket. Bucket यानी बाल्टी. Eighth. 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 Student, this is in the ordinal form. हम जो नंबर पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, ये उसके ordinal form है. 8 का ordinal form है 8th. end यानी खत्म. Fifth. Fifth. Again, this is the ordinal form of number 5. First. Again, this is the ordinal form of number 1. तो उसका 1 का ordinal form है first. 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 Now come to the next line. Fourth. This is also an ordinal form of number 4. Fourth. Grain. 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 It means anaj. Grains. This is the plural form of grain. Grains. Grains. यानी बहुत सारे अनाज हो तो इसे कहेंगे grains. Hips. Heaps. Hips यानी कि किसी भी चीज का ढेर. Hole. 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 It means सुराख. It is hole. Idea. Idea यानी तरकीब. Idea. If अगर. If means अगर. King. King मतलब राजा. Now what is the opposite of king? Yes, the opposite of king is queen. Kitchen. 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 Now here student, you have to read T silent. T को हम silent पढ़ेंगे तो ये होगा kitchen यानी बावर्ची खाना. Loved. 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 The next line. Minutes. Minutes. Minutes यानी जो क्लॉक में होते हैं ना, hours, minutes, that is. Never. Never. कभी भी नहीं. कभी नहीं. New. New का मतलब होता है नया. तो इसका what is the opposite of new? It is old. Old यानी पुराना, new यानी नया. Next. Next. Next यानी अगला. Next. Night. Night यानी रात. Now can you please tell me what is the opposite of night? Yes, it is day. Night यानी रात, day यानी दिन. Night का opposite है day. Ninth. Again, this is the ordinal form of number 9. Ninth.
नथिंग यानी कुछ नहीं, NOTHING, नथिंग यानी कुछ नहीं। PALACE, पैलेस, पैलेस यानी राजा का महल, पैलेस। देन पिक्ड, PICKED, पिक्ड यानी उठाना। रिवर, RIVER, रिवर यानी नदी। नेक्स्ट लाइन, ROSE, रोज, स्टूडेंट, दैट इज द टू मीनिंग्स, दो मतलब होते हैं रोज के। ROSE, रोज मतलब होता है गुलाब का फूल। रोज का मतलब ये भी होता है ऊपर उठना। इट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड राइज। सनराइज होता है तो वैसे राइज का पास्ट टेंस है रोज। तो रोज के दो मीनिंग्स है, वन इज गुलाब, एक गुलाब होता है, एंड अनदर वन इज ऊपर उठना, रोज। नेक्स्ट वन, सेकेंड। नाउ दिस इज अगेन द ऑर्डिनल फॉर्म ऑफ नंबर 2, सेकेंड। शोर, SHORE, शोर, नदी का किनारा या समंदर के किनारे को we tell shore, okay? Sixth, this is also the ordinal form of number 6, sixth। sparrow, sparrow it means चिड़िया, sparrow is SPARROW, sparrow। Now this is the प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पैरो, स्पैरोज यानी चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया। स्टेशन, STATION, स्टेशन। स्टोर हाउस, जहां पे गोदाम होता है, जहां पे जो है अनाज बहुत सारा एक्स्ट्रा में रखा जाता है, स्टोर हाउस, जहां पे हम चीजें जमा करके बेकार की चीजें भी रखते हैं या काम की चीजें भी संभाल कर रखते हैं। गोदाम, गोडाउन, उसको कहते हैं स्टोर हाउस, किसी भी चीज को जखीरा करने का घर, ठीक है। जैसे अनाज का स्टोर हाउस होता है, हमारे घर में दूसरे सामानों के भी स्टोर हाउस होते हैं। स्टोरीज, कहानियां, स्टोरीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी यानी कहानी, स्टोरीज मीन्स कहानियां। स्टोरी टेलर, जो कहानी बोलता है, कहता है, उसको कहेंगे स्टोरी टेलर, कहानी कहने वाला। टेल, कहना, बोलना। टेलिंग, TELLING, टेलिंग, बोल रहा है। टेंथ, दिस इज अगेन an ordinal form of number 10, tenth। Third, this is also an ordinal form of number 3, third। Thought, 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 it means सोचा। Tomorrow, 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 tomorrow यानी के आने वाला कल। आज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? टुडे, आज यानी टुडे। यस्टरडे, जो चला गया कल, उसे हम यस्टरडे कहेंगे, जो गुजर गया दिन। टुमारो यानी आने वाला कल, ओके। यूजुअल, USUAL, यूजुअल। WALL, वॉल यानी दीवार, वॉल। योरसेल्फ, YOURSELF, yourself। A student, again I am reading the words of a garden of first table, so please read with me. Okay, start. After, as, believe, bright, broke, bucket, ate, end, fifth, first. Now come to the next line. Fourth, grain, grains, heaps, whole, idea, if, king, kitchen, loved. Minutes, never,
Name. Next, night. Ninth, nothing. Palace, picked, river. Rose, second, shore, sixth, sparrow, sparrows, station, storehouse, stories, story. Storyteller, tell, telling, tenth, third, thought, tomorrow, usual, wall, yourself. I hope student आप मेरे साथ read कर रहे होंगे. You know very well the pronunciation of each and every word. Now come to the next slide. Student, some pictures of the words. जैसे कि heap. Heaps का मतलब होता है ढेर. किसी भी चीज का जो हम ढेर लगाते हैं that is called heaps, यानी कि अंबार, ढेर. Then after grain, जो अनाज we will use, हम जो अनाज यूज करते हैं, we use that grains. Wheat, rice, jawar, they are all grains. Thereafter palace. Palace means महल, जिसमें राजा महाराजा रहते हैं. Okay, palace. And storehouse, चीजों को जखीरा करने की जगह, उसे हम कहते हैं store house. Come to the next. Okay, student, here is the exercise given in your textbook. Just solve this exercise. Find and write the words that contain the following words. Now what you have to do, just look at the table of the garden of words. आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है. अब ये जो वर्ड है RIGHT, राइट. अब इस गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें ये वर्ड आता हो, तो यू हैव टू फाइंड दैट वर्ड. तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इन द फर्स्ट लाइन द फोर्थ वन इज ब्राइट, है ना. ब्राइट, ब्राइट में इस वर्ड को यहाँ पर है, यहाँ पर RIGHT, राइट. तो हम वर्ड लिखेंगे उसके सामने ब्राइट. ओके. द सेकेंड वन इज रेन. ऐसा कौन सा टेबल में वर्ड है जिसमें रेन वर्ड आता हो? यस, इट इज ग्रेन. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेन, क्योंकि इसमें ये जो रेन वर्ड है वो यहाँ पर आया है. इट कंटेन्स द वर्ड रेन. द नेक्स्ट वन इज hen. अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें hen आता है? यस, हियर इट इज किचन. किचन में HEN, hen आया है, तो हम उसके सामने लिख लेते हैं किचन, है ना. राइट, ब्राइट में राइट कंटेन किया हुआ है, ग्रेन में रेन कंटेन किया हुआ है और किचन में hen कंटेन किया हुआ है. और आगे देखते हैं. यस, नट. ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें NUT नट आया है? यस, इट इज मिनट्स. तो हम यहाँ पे मिनट्स लिख देते हैं. यहाँ पे देखिए मिनट में NUT नट आया है. देयरआफ्टर यस, नॉट. नॉट किस में आया है? आप प्लीज टेबल में देख लीजिए. यस, नथिंग. नथिंग में आया है नॉट. नथिंग में नॉट कंटेन किया हुआ है, तो हम उसे लिख देते हैं नॉट किस में है? नथिंग वर्ड में आया है. देन लेस. लेस आया है वर्ड पैलेस में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैलेस. एंड द लास्ट वन इज एरो. एरो किस में आया है? स्पैरो में, है ना. स्पैरो में भी है, स्पैरोज में भी है, तो हम लिख देते हैं स्पैरो. तो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि आपको क्या करना है. ये जो वर्ड्स हैं वो जो भी वर्ड्स में आए हैं कंटेन किए हुए हैं, यू हैव टू राइट दैट दोज वर्ड्स. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यस, हियर इज द अनदर वन क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट नंबर्स.
स्टूडेंट्स, आपने अभी आपके सामने टेबल ऑफ गार्डन ऑफ वर्ड्स देखी, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ नंबर्स के ऑर्डिनल नंबर्स आए हैं। तो आपको वो नंबर जो है इसमें टिक करना है। आपको राउंड बनाइए, स्क्वायर बनाइए और टिक कीजिए। तो पहली लाइन में हम चेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज 8। 8 जो है वो 8 का ऑर्डिनल नंबर है, तो हम इसे टिक करते हैं। आफ्टर दैट 5th, which is the ordinal form of number 5. Then first, it is an ordinal number, ordinal form of number 1. अब सेकेंड लाइन में हम जाते हैं। Yes, 4. This is an ordinal form of number 4. Then 9th. This is the ordinal form of number 9. 9th. So these all are numbers. Then second, the ordinal form of number 2. 6th, ordinal form of number 6. 10th, ordinal form of number 10. And the last one is 3rd, ordinal form of number 3. I hope students आपको समझ गया होगा कि जो हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दे आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। एंड जो ये नंबर्स है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, these are all the ordinal form of cardinal numbers। कार्डिनल नंबर्स के ये ऑर्डिनल फॉर्म्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes, here is the third question for you. Complete the following sentences using different words from the table above. Okay? अभी आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल ऊपर दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए। ओके, तो आपको क्या करना है, हियर इज द टेबल द गार्डन ऑफ वर्ड्स। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यू हैव टू कंप्लीट इट विद द प्रॉपर वर्ड, जो इस पे सूटेबल कर वर्ड होता है, जिससे ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। नाउ लुक एट हियर, Who will do it? फर्स्ट हम इसका मतलब देखते हैं। Who will do it? इसे कौन करेगा? Who will do it? कौन करेगा? तो इस गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। कौन करेगा? तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं टुमारो, तो ये सेंटेंस हो जाता है Who will do it tomorrow? कल इसे कौन करेगा, है ना। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। टुमारो, Who will do it tomorrow? तो यहां पर हमने ये सेंटेंस लिखा तो इससे ये कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट वन, She picked up the, picked यानी उठाना, up ऊपर, ऊपर उठाया। अब इसमें से हम कौन सा वर्ड लेंगे कि वो यहाँ पे लिखने से सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है एंड इट शुड बी मीनिंगफुल ऑल्सो। यस स्टूडेंट, बकेट। अगर हम यहाँ पे बकेट लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है शी पिक्ड अप द बकेट, उसने बकेट को ऊपर उठाया। द सेंटेंस विल बी मीनिंगफुल एंड ऑल्सो कैसा हो गया, ये हो जाएगा, मीनिंगफुल भी हो जाएगा और इट ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्लीज डैश मी, प्लीज मुझे, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर हम यहाँ पे टेल लिखते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए, देखिए लास्ट लाइन में सेकेंड वर्ड है, कंप्लीट करने के लिए हम 10 लिखते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। प्लीज टेल मी, मेहरबानी करके मुझे कहो, मुझे बताओ, मुझे बोलो, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज द किंग वॉज इन द, राजा था, कहां पे था,
यस, हमने इस टेबल में एक वर्ड पढ़ा था पैलेस यानी महल। तो राजा कहाँ पर था? पैलेस में था। द किंग वॉज इन द पैलेस। So student, I hope you will understand how to complete the sentences with the given table of garden of words. ठीक है? I hope student आपको लेसन अच्छी समझ में आ गया होगा। Then what you have to do? This is your homework. आपको गार्डन ऑफ वर्ड का टेबल अपनी नोटबुक में लिखना है एंड ऑल्सो आपको जितनी भी दी हुई एक्सरसाइजेज है वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, inshallah we will meet again in the next session. Till then, thank you. Allah Hafiz. I hope student what I have taught you today you learned very well and understood very well. So please do your homework. Okay, and we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.